Hello students, next 13th chapter is the solar system. But before explanation, we will discuss hard words. First hard word is planet. 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 Planet means objects in the solar system that revolve around the sun. प्लैनेट्स जो हैं हमारे सन के चारों ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. देयर आर टोटल 8 planets in the solar system and these 8 planets move around the sun. Clear? Now next hard word is dwarf planet. DWARF dwarf planets. It is an object that revolves around the sun but does not belong to the category of planets. ये भी जो हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, बट इनको प्लैनेट्स की कैटेगरी में ऐड नहीं किया है. पहले हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स होते थे. प्लूटो भी 9th प्लैनेट था, बट अब प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट है. ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स ये अब इतने छोटे प्लैनेट्स हैं कि दिखाई भी नहीं देते हैं. नेक्स्ट इज मर्क्यूरी. MERCURY. Mercury. It is the first planet from the sun and smallest planet in the solar system. 1 marks का क्वेश्चन आता है कि name the smallest planet in the solar system. Then your answer is Mercury. MERCURY. Mercury is the first planet from the sun. Now next is Venus. 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 Venus, it is the second planet and it is also known as hottest planet in the solar system. Now next is Earth. 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 It is also called blue planet. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. Why? Because 70% of its surface is covered with water. 70% जो है अर्थ का पार्ट जो पानी से ढका हुआ है एंड 30% जो है लैंड है. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. जब हम अर्थ को स्पेस में देखते हैं तो अर्थ हमें ब्लू कलर का नजर आता है. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट in the solar system. Only Earth is the planet where life is possible because Earth contain water, air and sunlight. That is the reason life is exist only on Earth. Now next planet is Mars. Mars is the fourth planet. MARS. Mars. It is the fourth planet and it is also called रेड प्लैनेट. इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं. भाई बिकॉज सोइल एंड रॉक्स ऑफ दिस प्लैनेट आर रेड. इस प्लैनेट की जो मिट्टी है और रॉक्स हैं वो रेड कलर की हैं, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट. नेक्स्ट वन इज जुपिटर. JUPITER. Jupiter. Jupiter is the fifth planet in the solar system and it is also called largest planet. ये भी क्वेश्चन आता है 1 marks का कि write the name of largest planet in the solar system. Then your answer is, tell me, Jupiter. 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 Next one is Saturn. 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 Saturn is the 6th planet of solar system and it is the second largest planet. It is also called second largest planet. Means 1 marks का फिर क्वेश्चन आएगा कि write the name of second largest planet in the solar system. Then your answer is Saturn. 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 Now this planet has beautiful rings around it that are made of rocks and ice particles. पिक्चर में भी देखिए कि इस
प्लैनेट के चारों ओर क्या है, एक रिंग्स बनी हुई हैं, और ये रिंग्स किसकी होती हैं, मेड ऑफ रॉक्स एंड आइस पार्टिकल्स. नाउ नेक्स्ट वन इज यूरेनस. URANUS, Uranus. It is the seventh planet from the sun and it is the coldest planet in the solar system. Uranus is the coldest planet in the solar system. Next one is Neptune. NEPTUNE, Neptune. It is the eighth planet from the sun and is the outermost planet. It is very cold on Neptune. सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन है, नेपच्यून. ये यूरेनस से भी ज़्यादा ठंडा है. तो नेम द वेरी कोल्डेस्ट प्लैनेट, देन योर आंसर इज नेपच्यून. नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज प्लूटो. PLUTO, प्लूटो. प्लूटो इज ए dwarf planet. Next one is Ceres. CERES, Ceres. Ceres is also a dwarf planet. प्लूटो और सीरीज दोनों ही dwarf planet हैं. मीन्स अब इनको प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं. नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट. SATELLITE. Satellite. Satellite means an object that revolves around a planet in an orbit is called a satellite. सैटेलाइट जो हैं वो प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं. 2 टाइप्स के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट में आपका मून आता है. मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट और मून क्या करता है, ये अर्थ के चारों ओर मूव करता है. मीन्स an object that revolve around a planet. The moon is an object that revolve around a earth. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो मैन द्वारा बनाए जाते हैं. मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स इन एन ऑर्बिट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही आपको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है वेदर की. आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मोबाइल से बात कर सकते हो. वो भी कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से. तो स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट्स. एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट. ऑर्बिट मीन्स होता है फिक्स्ड पाथ. नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्ट्स. REFLECTS. रिफ्लेक्ट्स का मीनिंग होता है टू थ्रो बैक लाइट, हीट एक्सेट्रा फ्रॉम ए सरफेस. मून की अपनी लाइट नहीं होती है तो वो लाइट किससे लेता है, किसके कारण वो रात को चमकता है, शाइन करता है, सन की लाइट के कारण. नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिलेशंस. CONSTELLATION. Constellations means group of stars form a beautiful pattern in the sky. बहुत सारे स्टार्स इकट्ठा होकर एक डिज़ाइन बनाते, एक पैटर्न बनाते हैं जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉन्स्टिलेशंस. लुक एट दिस पिक्चर, इट इज़ कॉल्ड उर्सा मेजर. ये भी क्या है, कॉन्स्टिलेशन. कितने ज़्यादा स्टार्स हैं और इतने ज़्यादा स्टार्स ने मिलकर क्या बनाया है, उर्सा मेजर. उर्सा मेजर मीन्स आपको क्या लग रहा है, उर्सा मेजर इट लुक लाइक ए ग्रेट बियर. उर्सा मेजर को हम द ग्रेट बियर भी कहते हैं. लुक एट नेक्स्ट पिक्चर, इट इज ए ओरियन. ORION, ओरियन. ओरियन की पिक्चर देखिए, इट लुक लाइक ए हंटर. एक शिकारी की तरह है जो क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है. तो ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर. नाउ नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो. SCORPIO, Scorpio, or it is also called scorpion. Look at this picture. Now next is galaxies. GALAXIES, galaxies. galaxies को हम गैलेक्सी भी कहते हैं. गैलेक्सी का मीनिंग होता है लॉट्स ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट्स एंड हॉट गैसेस make up galaxy. Look at this picture.
Lots of stars, planets and hot gases make up galaxy. Next, galaxy is ऑल्सो कॉल्ड मिल्की वे. मिल्की वे को हम गैलेक्सी भी कहते हैं कि स्काई में आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं और अदर पार्टिकल्स होते हैं. हॉट गैसेस मेक अप गैलेक्सी. नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी लाइन. IMAGINAR इमेजिनरी लाइन. LINE इमेजिनरी लाइन. स्पेस में जब आप अर्थ को देखोगे तो आपको कोई भी इमेजिनरी लाइन अर्थ के ऊपर नज़र नहीं आएगी. इमेजिनरी का मीनिंग होता है काल्पनिक, मीन जो ट्रुथ नहीं होता, जो सच नहीं होता है. जब आप स्पेस में अर्थ को देखोगे तो आपको ना ही एक्सिस और ना ही इक्वेटर नज़र आएगा. नेक्स्ट वन इज एक्सिस. AXIS axis. Axis means imaginary line that running from the center of the earth from the north pole to south pole. Look at this picture. It is a axis. और एक्सिस जो है रन कहाँ से करे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, तो इट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन. नेक्स्ट वन इज इक्वेटर. EQUATOR equator. Student, look at this picture. It is called equator. Equator divides the earth into two equal halves. Equator जो है अर्थ को two equal halves में डिवाइड करता है, मीन्स two parts में डिवाइड करता है. The half above the equator is called northern hemisphere. मीन्स इक्वेटर का जो ऊपर का भाग, इक्वेटर से जो ऊपर का भाग जो है अर्थ का, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. लुक एट दिस पिक्चर. एंड द हाफ बिलो द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर. और इक्वेटर के नीचे अर्थ का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर. नाउ नेक्स्ट वन इज हेमिस्फीयर. HEMISPHERES hemisphere. Student, look at this picture. It is called hemisphere. Next one is northern. NORTHERN northern. Next one is southern. SOUTHERN southern. Means equator divides the earth into two equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere. Now next one is rotation. ROTATION rotation. Rotation means spinning movement of the earth on its axis. स्पिनिंग का मीनिंग होता है मूव करना, घूमना. अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पर क्या करती है, मूव करती है. अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. और वन डे किसके इक्वल होता है, 24 hours. अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 1 day लग जाता है. नेक्स्ट वन इज रेवोल्यूशन. REVOLUTION रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. अर्थ जब सन के चारों ओर मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन. टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 year. अर्थ को वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग जाता है, 1 year. अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 1 year. क्लियर. नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज ऑर्बिट. ORBIT orbit. Orbit means fixed path in which planets move around the sun. It is called orbit. Now next one is monsoon. MONSOON monsoon. Monsoon is also called rainy season. Now we will discuss keywords. First keyword is orbit. The fixed path in which planets revolve around the sun is called orbit. Look at this picture. Now second one is satellite. An object
that revolves around a planet in an orbit is called a satellite. ऑब्जेक्ट जो है प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है और मून जो है अर्थ के चारों ओर मूव करता है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैन द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं और हमें प्लैनेट्स के बारे में, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। Next one is axis, 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 an imaginary line running through the center of the earth from the north pole to the south pole at an angle of 23.5 degree is called an axis. Axis जो है एक imaginary line है। ये लाइन जो है कहाँ से रन कर रही है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और हमारा जो अर्थ है कौन से एंगल पर टिल्ट होता है? आवर अर्थ हैज़ ए टिल्टेड एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। टिल्ट का होना मीनिंग होता है बेंड होना। स्टूडेंट रिमेंबर दिस, हमारे अर्थ जो है किस एंगल में टिल्ट होती है, मीन्स बेंड होती है सन की तरफ, तो 23.5 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वेटर। इक्वेटर इट इज़ आल्सो इमेजिनरी लाइन, जो हमने सोचा होता है, इमेजिन किया होता है। अर्थ को जब आप स्पेस में देखोगे ना ही आपको एक्सिस दिखाई देगा और ना ही इक्वेटर दिखाई देगा। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, बोथ आर इमेजिनरी लाइन। Equator is also imaginary line and axis is also imaginary line. What do you mean by equator? It is an imaginary line that divides the earth into two equal halves. सेंटर में, अर्थ के सेंटर में जो आप लाइन देख रहे हैं उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर अर्थ को टू पार्ट्स में या टू हाफ्स में डिवाइड करता है। अपर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बिलो द इक्वेटर, इक्वेटर से जो नीचे वाला पार्ट उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट, ओनली यू लर्न सिंपल डेफिनेशन। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल halves. Write hard words and keywords in Fair notebook and see this video 2-3 times and know about the meaning of these hard words. Thank you.